let's do some accounting, let's do some accounting. I am an accountant, let's do some accounting. Hello and welcome to my channel Commerce with Seema Children. So the much awaited video is here now. The video related to company accounts. आपके पास इस बुक में दो चैप्टर्स हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट. इश्यू ऑफ शेयर्स इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट चैप्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसमें से एक 6 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट. टोटल 5 मार्कर्स हैं आपके पास. 6 मार्क का एक क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा. एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा रिलेटेड टू शेयर्स, राइट. Now when we talk about shares, from the chapter Sources of Business Finance of class 11th, where you have read everything in detail about equity shares, preference shares, retained earnings, debentures, public deposits. So the numerical part is here now. Shares क्या होते हैं, कैसे इश्यू होते हैं. सो शेयर्स क्या होते हैं ये तो आप सबको पता है. रिलेटेड टू दिस थियोरी इज गिवन इन द एनसीईआरटी ऑल्सो, एज वेल एज इट इज गिवन इन ऑल द रेफरेंस बुक्स लाइक योर टीएस ग्रेवाल बुक, योर डीके गोयल बुक, योर संदीप गर्ग बुक. इन ऑल बुक्स द डिटेल्स हैव बीन गिवन related to the theoretical part which you have already studied in class 11. What is share and how many types of shares are there? Everybody knows shares are of two types, equity shares and preference shares. The difference between equity shares and preference shares. Then how the shares are issued. When we come to this topic, how the shares are issued, यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है. तो स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर न्यूमेरिकल से फेमिलियर करवाऊंगी इन ईच वीडियो, राइट. Now coming to the part of understanding this, when we talk about issue of shares, shares children can be issued in two ways. Shares can be issued for cash or it can be issued for consideration other than cash. Now what do we mean by that? Shares can be issued for cash. That means आप company shares issue कर रही है and in return cash मिल रहा है उसको. That means company is getting cash, people are applying and paying through cash in the bank which has been authorized by the company, right? Okay, ये clear है. Consideration other than cash क्या है? Consideration other than cash means यहाँ पर company shares issue करती है but cash नहीं मिल रहा है. इंस्टेड ऑफ कैश कंपनी यहाँ पर कोई फिक्स्ड एसेट खरीद लेती है, बिल्डिंग परचेज करती है, मशीनरी परचेज करती है, तो वो उसको मिल रहा है. कंसिडरेशन अदर देन कैश में वेंडर्स का केस आता है जहाँ पर कंपनी या तो परचेज ऑफ एसेट्स करती है या फिर वो परचेज ऑफ बिजनेस करती है, राइट. एंटायर बिजनेस इज व्हेन परचेज्ड. आई विल टेक दैट टॉपिक ऑल्सो इन डिटेल. So right now you have to remember that shares are issued for cash and for consideration other than cash. Clear? Okay. Now when the shares are issued for cash, coming to this topic, when shares are issued for cash, again it is classified into two parts. That is, number one, shares are issued in lump sum or shares are issued in installments. यहाँ पर shares अगर इश्यू कर रही है कंपनी तो इन लमसम का मतलब हो गया कि अगर शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए तो टोटल पेमेंट उसको एक बारी में रिसीव हो जाती है. एक इन टोटालिटी कंपनी रिसीव्स द पेमेंट. ओके, एंड हियर कंपनी रिसीव्स द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स. कंपनी बार बार ड्यू करती है और फिर वो रिसीव करती है अपने शेयर होल्डर्स से वो पेमेंट, राइट. Both ways questions have been asked previously in the board exams. If you pick up the questions of previous year, you'll see कि इस टाइप पे भी question है और इस टाइप पे भी question है. Okay? So अगर company shares issue कर रही है in lump sum, so just remember these are the only two entries which you have to pass. Alright? Now to elaborate certain things, मैं यहाँ पर एक imaginary example ले लेती हूँ. For example, company issues 10,000 equity shares at the rate rupees 10 each. Okay? At the rate rupees 10 each. Now ये क्या है? Number of shares. ये क्या है? Face value of share. Face value of share मतलब एक शेयर के ऊपर 10 रुपीज़ देने हैं तो कंपनी हैज़ टू रिसीव 10,000 इंटू रुपीज़ 10, 1 लाख. ऑलराइट. सो यहाँ पर जो एंट्री आएगी, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड
allotment account. Shareholders, people apply for this and they are allotted the shares. It is this type of entry to be passed in lump sum. ठीक है. सो ऑथराइज्ड बैंक में पेमेंट आती है कंपनी के पास में, कंपनी के ऑथराइज्ड बैंक के पास. सो एंट्री कंपनी की बुक्स में पास होती हैं इन द बुक्स ऑफ विच एवर कंपनी यू गेट द क्वेश्चन. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ऑलराइट. अब ये रिसीव हो गया अमाउंट. तो जब आपने कंपनी ने ये अमाउंट रिसीव कर लिया है तो कंपनी इन ल्यू ऑफ दिस हैज टू ट्रांसफर दिस इनटू इट्स कैपिटल. व्हाट एंट्री विल बी पास फॉर दैट? एंट्री टू बी पास्ड इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये अब कंपनी के कैपिटल में ट्रांसफर हो गया. ऑलराइट. इंस्टेड in case company has to if refund some amount तो ये एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. और अगर शेयर यहाँ पर 10 रुपीज़ का ही इश्यू हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पार पे कहलाएगा. शेयर्स इश्यूड एट पार. बट इफ द शेयर हैज़ बीन इश्यूड एट प्रीमियम, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपये का प्रीमियम भी है, तो 10,000 into ₹2 would be transferred into securities premium reserve. या securities premium भी आप लिख सकते हैं. Anything is okay. ठीक है. I hope you have understood the first entry and the second entry. Second entry most important है यहाँ पर. Equity share application and allotment account debit. You will debit what you received, what the company received, and then it is transferred to equity share capital. अगर प्रीमियम है क्वेश्चन में तो प्रीमियम अमाउंट, एनी अमाउंट ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज प्रीमियम. सो दिस इज प्रीमियम विल बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. एंड इन केस अगर कंपनी कोई भी शेयर रिटर्न कर रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर केस ले लेते हैं कि 200 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड बैक. तो 200 शेयर्स हैव बीन रिटर्न्ड बैक. 200 into 10 will be returned. अगर प्रीमियम होगा तो 200 into 12 will be returned. तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. चाहो तो 3 डिफरेंट एंट्रीज करना, चाहो तो इसको कंपाउंड एंट्री करना. दैट इफ यू पास अ कंपाउंड एंट्री इट सेव्स योर टाइम. क्यों? क्योंकि 3 अलग एंट्रीज करनी होती है, 3 अलग नरेशंस देनी होती हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी मेक द एंट्री कंपाउंड. ऑलराइट. ये केस हुआ हमारा इफ द शेयर्स हैव बीन इश्यूड इन लम्प सम. नॉर्मली लेकिन ऐसा नहीं होता है. आपके क्वेश्चन में बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे आपको कि कंपनी आस्क द अमाउंट इन द स्टेजेस. व्हेन द कंपनी आस्क द अमाउंट इन स्टेजेस, आई एम टेकिंग अगेन एंड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू फर्दर अबाउट इट. 10,000 शेयर्स हैं. द कंपनी सेज ₹3 is payable on application. ₹3 is payable on application. ₹4 is payable on allotment. And ₹3 is payable on first and final call. देखो, अंडरस्टूड सी बात है. पहले प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद पीपल अप्लाई फॉर शेयर्स, तो कंपनी के पास पैसे आते हैं. ओके. उसको गो थ्रू करने के बाद कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी. तो ये अलॉटमेंट मनी, कंपनी सेज दैट यू हैव बीन अलॉटेड द शेयर, तो आप अलॉटमेंट मनी पे करो. तो ये अलॉटमेंट अमाउंट. उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कंपनी, कंपनी मेक्स द कॉल्स. दिस इज कॉल्ड कॉल मनी. तो कॉल मनी कैन बी, I mean it can ask for 1 call, 2 calls, 3 calls depending upon the need. Okay. So here in this example I have taken first and final call. All right. Application ₹3, allotment ₹4 and first and final call ₹3 is payable by the shareholders to the company. All right. Number of shares are 10,000. तो अब हम यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करेंगे. फर्स्ट एंट्री, एज आई टोल्ड यू, प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद इंटरेस्टेड पीपल अप्लाई फॉर द शेयर्स. ओके. तो यहाँ पर कंपनी अप्लाई, पीपल अप्लाई एंड कंपनी रिसीव्स द एप्लीकेशन अमाउंट. तो यहाँ एंट्री हो जाएगी तुम्हारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 into 3, 30,000 would be transferred here. 10,000 into 3, 30,000 would be transferred here in application. कंपनी के पास एप्लीकेशन अमाउंट ये आ गई. ओके.
First step is this. Second step is share application money is transferred to share capital. So when it is transferred to share capital, आपकी एंट्री आ जाएगी share application account debit to share capital account. All right? Share application account debit to share capital. ये सेम अमाउंट 30,000 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, कंपनी के कैपिटल का पार्ट बन गया. ऑल राइट. Now after that, company, the board of directors go through the company's requirement and then they allot the shares. Let us assume here in the simplest case कि company allotted shares to all the applicants of 10,000 shares. तो अब क्या करेगी कंपनी? कंपनी allotment amount ड्यू करेगी. What is the allotment amount? Allotment amount is 4. कंपनी ड्यू करेगी. तो ड्यू करने के लिए यहाँ पर कंपनी लोगों से अब पैसे मांगती है कि भाई हमने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए, सो यू आर रिक्वायर्ड टू पे अलॉटमेंट अमाउंट. पीपल हैव टू नाउ पे. तो ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट हैज बिकम ड्यू. कंपनी ने ड्यू किया. ओके, कंपनी आपसे मांग रही है. सो 10,000 इंटू 4, that means 40,000 has to be paid. Okay, when people pay and company receives, bank account debit to share allotment. Bank account debit to share allotment. Letter आया लोगों के पास that they have been allotted the shares, so they have to now pay the allotment amount. Allotment amount pay करेंगे तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अब सेम केस रिपीट होता रहेगा. फर्स्ट कॉल है, सेकेंड कॉल है, जितनी भी कॉल्स हैं. यहाँ पर फर्स्ट कॉल है इस क्वेश्चन में. तो 10,000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल विल बी मेड ड्यू. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री क्यों डेबिट हो रही है, क्यों क्रेडिट हो रही है, ये पूरा एक प्रोसीजर है कंपनी की एंट्रीज का. सो दिस यू हैव टू लर्न. जिन लोगों ने अभी तक लर्न नहीं किया है और प्री बोर्ड्स हो चुके हैं तो इसलिए इसको अब लर्न करना पड़ेगा. ठीक है. फर्स्ट कॉल ड्यू करी और यहाँ पर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव करते हैं. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 3 शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव होगी. ठीक है. अब इस यहाँ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको शेयर सेकेंड कॉल भी लिखा है. विच एवर कॉल, सेकेंड कॉल हो, फर्स्ट कॉल हो, थर्ड कॉल हो, जो भी कंपनी की लास्ट कॉल होगी उसके साथ हम लिखते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल. ओके, सो वी हैव टू सम इट अप कि ये फाइनल कॉल है, उसके साथ ये ऐड हो जाएगा जो भी लास्ट कॉल होती है. तो आप यहाँ पर एंट्री करते हो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. बट इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं ना, सेकेंड कॉल नहीं है, फर्स्ट कॉल पे ही हम सम अप कर रहे हैं. तो जो फर्स्ट कॉल थी यहाँ पर कंपनी फाइनल कॉल भी ऐड कर देगी. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ओके, so this way the entry will be closed if the shares are issued in installments. To sum up, again I'll say that shares can be issued for cash and for consideration other than cash. When the shares are issued for cash, it can be issued in two ways. Number one, it can be issued in lump sum and it can be issued in installments. If it is issued in lump sum, you will get 2 entries to pass. Only 2 entries are to be passed in this case. ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको. शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इकट्ठा कर देना है. देख रहे हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट. तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐड कर देना है यहाँ. फाइन. और जब यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल किया था, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करना है. अगर रिजर्व है तो रिजर्व भी आपकी आ जाएगी यहाँ पे, एंड अगर रिफंड कर रहे हैं कोई भी शेयर तो बैंक आ जाएगा. आई होप आई एम क्लियर अबाउट द लमसम केसेस. ऑल द स्टेजेस आई हैव इंक्लूडेड हियर. पार, प्रीमियम, ये सब मैं अभी क्वेश्चन में लूंगी नेक्स्ट वीडियोज में, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट ऑल अमाउंट्स विल कम. एंट्री विदाउट करेक्ट अमाउंट, you will not get any marks. If you know the amount but you don't know the entries, then also no marks. So entry with amount has to be correct. Okay. If the shares are issued in installments, bank account debit to share application account debit to share capital,
share allotment account debit to share capital, allotment money due, bank account debit to share allotment, allotment amount received, share first and final call account debit to share capital, and bank account debit to share first and final call. This is the way we sum up this imaginary question which I have taken. All right. I hope I'm clear about it. For further upcoming details about the chapter, this chapter is very, very important chapter. So I will be posting the videos related to this in details. आप एक एक वीडियो देखते जाइए, समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और क्वेश्चंस उठाइए टीएस गरेवाल से, एनसीईआरटी से, डीके गोयल से, जिस बुक को भी आपको समझ में आता है वहाँ से क्वेश्चन पिक करते जाइए एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. All right. I hope you understand this point, and if there is any question, please put it in the comment section so that I can answer you back. Follow my channel for further keep updating your knowledge, and share it, subscribe it. Thank you.